Hello class 10th. So the topic for today is redox reactions. Before this we have studied about the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. Under that we studied about the single displacement and the double displacement. And I just gave you a brief introduction of the oxidation and reduction reactions. So the today's topic is redox reactions. I have taken this topic individually because you need to understand it very you have to understand it because it's there is not only a single characteristic with the help of which you can consider a reaction as a redox reaction. There are so many characteristics in that, so that's why please pay attention. So first of all, this is called as redox reaction. Why this is called as redox reaction? Because actually this RED represents the reduction and this OX represents the oxidation. That's why it is collectively called as redox reaction. Why this is called as collectively? Because oxidation cannot take place without reduction. Oxidation is always followed by reduction. So that's why this is the redox reaction. Now here I have made you, I have tried to make you people understand that what are the various characteristics through which we can consider a reaction as a redox reaction, right? So the first characteristic is addition of oxygen. Oxy stands for oxygen, just to understand this. So addition of oxygen, whenever oxygen is added into something, then we can call that reaction as the oxidation reaction. But if the oxygen is removed from something, किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन था एंड उसमें से वो ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया, तो हम बोलेंगे कि वो उसकी क्या हुई, रिडक्शन. ओके, देन द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज opposite of the first characteristic, removal of hydrogen. If hydrogen is removed from somewhere, from any of the compound, then that will be called as oxidation. On the other hand, if the hydrogen is added to something, if hydrogen is added to some compound, then that will be called as the reduction reaction, right? Then the next characteristic is if the loss of electrons is taking place, if the electrons are lost by something, ठीक है. एंड वी नो मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक होता है लूज़ करने का इलेक्ट्रॉन्स को. सो दैट्स वाई अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन, एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन. नाउ दिस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Increase in oxidation number, decrease in oxidation number. We have to understand first of all what is this oxidation number. Oxidation number is actually such kind of thing which helps us to understand that the compatibility or the feasibility of an element to combine with anything, or the for example it's not like valency, because valency जो है it is not positive or negative. वैलेंसी का कोई भी साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. एंड वैलेंसी जो है वो आपकी इट इज़ मैक्सिमम अप टू it can be maximum up to 4, from 0 to 4. But when it comes to the oxidation state, तो oxidation state अगर आप देखोगे जब in the high classes you people will study, तो in D block elements you will be having elements or the metals which will be having oxidation state up to 7 also. 7 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी वैलेंसी की तरह नहीं होती. ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में हमें ये बताता है कि ये किसके साथ बॉन्ड बना सकता है या कितनी बॉन्ड बना सकता है. ऑक्सीडेशन नंबर से हमें वो पता चलता है, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी आर नॉट वन एंड द सेम थिंग. One more thing, why I have taken so many characteristics, why there are so many characteristics to categorize a particular kind of reaction into redox reaction, because it's not the case. हमें हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो ही रहा होगा, या फिर हम ये बोले कि हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का रोल वहाँ पे रहा ही होगा. ये ज़रूरी नहीं है.
सो दैट्स वाई वी हैव, अगर ये करेक्टर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता देन हम सेकंड करेक्टर ले लेंगे, सेकंड करेक्टर अप्लाई नहीं होगा तो थर्ड करेक्टर ले लेंगे, थर्ड करेक्टर नहीं लेंगे तो फोर्थ। लेकिन फोर्थ वाला करेक्टर जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैरेक्टरिस्टिक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी अप्लाइड इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन एंड if like once if you will understand this oxidation number, आप easily बता दोगे कि oxidation कहाँ पे हो रही है, reduction कहाँ पे हो रही है, it's very easy, but आपको समझना पड़ेगा oxidation number को। let us take an example, addition of oxygen। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ ये रिएक्शन की, H2 plus O2 gives H2O, 2 लिख रही हूँ यहाँ पे टू बैलेंस इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखो इसमें ये फर्स्ट दोनों केस जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तभी वाटर बना, ऑक्सीजन जो है उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तभी वाटर बना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में हुआ, यहाँ पे, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ, इसमें से एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसमें से हुआ, तो इसकी क्या हुई, इस ऑक्सीजन की हुई यहाँ पे रिडक्शन, एंड इस हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, शॉर्टकट में वी कैन राइट इट लाइक दिस, एंड इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। तो यहाँ पे तो सामने ही हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको रिएक्शन को समझना इतना मुश्किल नहीं है। बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमें इजीली समझ आ जाता है जब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, सबसे पहले यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई भी एलिमेंट है या कोई मॉलिक्यूल है, ये सब आपने पढ़ा है इन क्लास 9th, जब भी कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, जब वो अपनी नेटिव स्टेट में होता है, नेटिव स्टेट मीन्स द ओरिजिनल स्टेट, द नेचुरल स्टेट इन विच इट इज़ अवेलेबल, ओके। सो जब भी कोई अपने नेटिव स्टेट में होता है एट दैट टाइम इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कंसिडर्ड एज 0। हमें पता है हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल तो H2 होता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, और मेटल जितने भी होते हैं वो हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब वो हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, वी हैव सो मैनी मेटल्स, लेड है, ठीक है, वी हैव लिथियम, ठीक है, कोई भी मेटल है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर अपना नेटिव स्टेट जो रहता है वो मोनोएटॉमिक ही रहते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल, यानी Na2 नहीं होता, Na4 नहीं होता, ये सिंगल ही एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पे इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। प्लीज़ ध्यान से समझना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 0। एंड वी नो वी हैव दीज डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, H2 हो गया, O2 हो गया, वी हैव Cl2, वी हैव Br2, ये सारे के सारे जो है वो अपनी नेटिव स्टेट में क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये भी सारे क्या होंगे, 0, इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, 0, राइट। नाउ अब हमारे पास है जैसे ओजोन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 0। फॉस्फोरस आपने पढ़ा था टेट्राएटॉमिक है, 0। सल्फर आपने पढ़ा था ऑक्टाएटॉमिक है, 0, ठीक है। तो नेटिव स्टेट मतलब जब जो उनकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज और दे ऑलवेज हैव द 0 ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो अब कैसे इसको अप्लाई करें टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब वैलेंसी भी यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। कैसे यूज़ होती है वैलेंसी, वैलेंसी कैसे यूज़ होगी किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। देखो जैसे मैंने वाटर में, अगर मैं बोलूँ मुझे वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, आप यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि कोई भी जब अपनी जैसे केमिकल चेंज हुई, ये केमिकल चेंज है जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो मिलके एक न्यू कंपाउंड बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने इंडिविजुअल एलिमेंट जैसी नहीं होती, ये हमें पता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि H2 यहाँ पे, मैम आपने अभी बोला कि ये डायटॉमिक है तो यहाँ पे मैं सीधे बोलूँ कि हाइड्रोजन तो 0 है, वाई वी नीड टू कैलकुलेट इट। डोंट थिंक लाइक दैट। वेन एवर इट हैज़ फॉर्म्ड अ कंपाउंड, सो
उसके कैरेक्टरिस्टिक और जहाँ से वो बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में व्हेनेवर अ न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, उसकी प्रॉपर्टीज़ जिन कंपोनेंट से वो बने हैं उससे डिफरेंट होती हैं. प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड. ओके, तो हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी इज़ 2. ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, तो अगर हम उसकी चार्ज की बात करें तो चार्ज उस पर होता है -2. अगर आपको पता ऑक्साइड इज़ -2. ठीक है, तो हमें पता है ऑक्सीजन इज़ -2. मैंने लिख दिया यहाँ पे -2. जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1. ठीक है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे ऑक्सीजन के साथ क्या है 1. एंड हाइड्रोजन की हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है x. राइट, इसके पावर में क्या है 2. प्लीज़ इसको समझना प्लीज़. ठीक है, इसके पावर में क्या है x, तो 2 × x, 2x प्लस 1 × -2 एंड ओवरऑल अगर देखें तो इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो इज़ इक्वल टू 0. इस तरह के इसकी हमें एक इक्वेशन बनानी होती है. तो ये क्या बनेगा 2x - 2 इज़ इक्वल टू 0. 2x इज़ इक्वल टू 2, -2 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2. x इज इक्वल टू 2/2 विल बी 1 +1. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई +1. समझ रहे हो. एंड ये बैलेंस कैसे हुआ इस टाइम पे, अगर मैं इसको लिखूँ दोबारा से ऐसे 1 और ये मैं बोल रही हूँ ये है +1 और ये है -2, तो 2 × +1 विल बी +2 एंड 1 × -2 विल बी -2. +2 ओवरऑल वाटर इज न्यूट्रल कंपाउंड. दिस इज हाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल कंपाउंड. इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अंडरस्टूड. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे ये इक्वेशन चेंज हो सकती है चार्ज्ड कंपाउंड्स के ऊपर. जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास है चार्ज, जैसे कार्बोनेट हो गया. ठीक है, कार्बोनेट हो गया आपके पास CO3 2 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट. अब ये चार्ज अलग है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनो. ये CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट अलग है. ये 2 नेगेटिव जो इसके ऊपर चार्ज है ये अलग चार्ज है, ये आपको पता है. ठीक है, एंड अब हमें पता है अभी राइट नाउ इन वाटर ऑल्सो वी हैव डिटर्मिन कि हमने चार्ज किसका यूज़ किया ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन का चार्ज बस -2, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया. ये अलग से -2 है. चार्ज कंपाउंड ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान से देखो. और सपोज़ मुझे कार्बन का फाइंड आउट करना है. कार्बन के नीचे क्या 1, तो 1x मैं लिखूँ या ना लिखूँ, तो x प्लस 3 × -2 इज़ इक्वल टू. अब ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, न्यूट्रल होगा तो इक्वल टू 0 होता है. ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा -2. राइट, सो x प्लस × -6, x -6 इज़ इक्वल टू -2. सो x इज़ इक्वल टू -2 + 6, सो x इज़ इक्वल टू 6 में से 2 4, बड़ा साइन इसका 4 + 4, तो x क्या आ जाएगा +4. तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +4. ठीक है, ये चार्ज्ड कंपाउंड है, दैट्स वाई यहाँ पे हम वो जस्टिफाई नहीं करेंगे. एंड हमें पता है इन द लास्ट क्लास ओनली, इन 9th स्टैंडर्ड ओनली वी हैव स्टडीड कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है. तो वो हमने वैलेंसी भी जस्टिफाई कर दी एंड ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है. अंडरस्टूड. अब हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये देखते हैं अब हम किसी भी रिएक्शन में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि द रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है. वन मोर थिंग, जो ऑक्सीडेशन करवाता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड जो रिडक्शन करवाता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो यू विल बी गेटिंग इन योर टेक्स्ट बुक दैट व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट. सो वंस people will be able to find out कि in the particular reaction which compound or which molecule is undergoing oxidation, which molecule is undergoing reduction, and ऑब्वियसली जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिडक्शन करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. राइट, सो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक केस ले लूँ. मैं ले रही हूँ H2 + Cl2 gives HCl. To balance it I have to put 2 here. ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन एंड 2 HCl, बैलेंस्ड रिएक्शन.
अब what is to be done here, मैंने आपको बोला कोई भी अपनी नेटिव स्टेटमेंट नेचुरल स्टेट डायटोमिक हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। अब वेरिएशन कहाँ है, ये कंपाउंड है HCl, क्लोरीन जो है वो क्या होता है आपका HCl जो है क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज होता है -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो हम अगर आपको वही फाइंड आउट करने की कोशिश करें ऑक्सीडेशन नंबर से, तो मैं बोलूँगी कि ये हो जाएगा, सिर्फ HCl को देखें अगर हम, तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया +1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हाइड्रोजन का +1 और Cl क्या आ गया -1। अब हमने देखना है क्या चेंज आ रही है रिएक्शन में। हमारे पास इस तरह से हम बनाते हैं कि ये आ गया 0 स्टैंडर्ड और ये हमने स्केल बनाई, ठीक है, इंटीजर जैसे आप बनाते हो। तो मैंने कहा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसी तरह से +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरफ को अगर कुछ जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, एंड इस तरफ पे जाना इज रिडक्शन, ठीक है। अब आप देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन, हमें इससे पता चलेगा। ये 0 से +1 हुआ, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, यही बोला मैंने ऑक्सीडेशन। एंड इसको देखो क्लोरीन को, ये 0 से -1 गया, 0 से -1, इसकी क्या हुई रिडक्शन, समझ आया। देखो जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपको अगर ये वाला लास्ट वाला समझ आ गया तो आपको और किसी झमेले में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। Although those above characteristics are also very important, but अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया then it will be very easy for you all, ठीक है। So try to apply this concept in the reactions given in the textbook. Thank you so much.